So first of all, very good morning to all of you guys. In the last session, we had learned what is orthographic projections and some definitions and keywords for orthographic projections, right? So first of all, let me remind you all of you guys that orthographic projection is the converting any 3D drawing into 2D views, right? For example, a sketch is given to all of you guys in the screen. The 3D view of the object is given in the center, and then the different views of that object, like the front view, side view, and top view, we have shown side by side, right? Now we are going to draw these views, 2D views on into sheets. So today we are going to learn how to draw these 2D views into drawing sheets, right? So first of all, I request all of you guys to take a screenshot of this picture so you can see the full 3D object, right? Just tell me if you are done capturing the screenshot, because then I'll just shift to do my camera on sketchbook so Okay. I can show you how to Okay, draw sir. this view, right? Okay. Done. Yes. Thank you. I'll just start presenting. Yes, right. Now I think my camera is visible to all of you guys. Someone, Yes, sir. yes, Yes, someone sir. smile. Yes, yes. So Yes, sir. now we are going to see how to draw this object, right? So first of all, we need to find out the projection method in which we are going to draw our drawing, right? So first of all, I'll just draw this view in the first angle method, right? You know that there are two methods of drawing, that is first angle drawing and second angle drawing, third angle, right? First angle and third angle. Why we are drawing the first angle and third angle? Let's understand first. If you remember the Cartesian coordinate, then it is something like this. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is the fourth and the last quadrant, right? There are total 4 quadrants in the 2D space of x and y axis, right? Yes, maybe someone's mic is, yes, thank you for muting yourself. Please mute yourself, guys. Someone mic is on. Please close that. Okay, done. So there are 4 quadrants: first, second, third, and fourth. Why we are drawing the objects in first quadrant and third quadrant only, right? So to understand it, we are going to see the projection planes, right? There are 3 projection planes main, that is horizontal plane, this is the HP,
and this is vertical plane VP, right? And somewhere the exact perpendicular from both of these planes there will be the PP projection plane, right? So there are 3 planes, but we are talking about 2 planes only here. Now if I placing the object, let me just show the object. I'm taking one object that is a square, right? Like this. This is the object. If now you know that on the HP, what view will be shown of this object? That is top view, right? जो मेरा टॉप व्यू है वो मुझे HP पे दिखेगा एंड VP पे मुझे फ्रंट व्यू दिखेगा ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड से देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का ये जो फ्रंट व्यू है ये मुझे यहाँ पे दिखेगा इस प्लेन पे, राइट? इस तरीके से। एंड ये जो टॉप व्यू है वो मुझे यहाँ पे बॉटम HP पे टॉप व्यू मुझे शोकेस करेगा, राइट? लाइक दिस। सो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? सिर्फ ये जो फ्रंट व्यू है वो ही मुझे दिखेगा। ये जो व्यू है वो मुझे एक पॉइंट या एक लाइन की तरह ही दिखेगा। HP जो है वो एग्जैक्टली मेरे पैरेलल होगा तो मुझे वो एक लाइन या एक पॉइंट ही दिखेगी। ये जो Y प्लेन है VP वो मेरे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से अगर बात करें तो VP इज द परपेंडिकुलर, यहाँ दिस इज द व्यूअर, राइट? मैं यहाँ पे आईज ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द व्यूअर। तो व्यूअर के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन होगा VP एंड व्यूअर के पैरेलल में HP होगा, राइट? तो HP जो है एक लाइन की तरह ही दिखेगा। सो ये जो HP पे व्यू होगा उस व्यू को हम अच्छे से देखने के लिए हम क्या करेंगे? इस HP को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, राइट? सो ये HP जो है वो पूरा रोटेट होगा, यहाँ से ये भी रोटेट होगा, राइट? दिस इज ऑल्सो द HP एंड दिस इज ऑल्सो VP, राइट? पूरी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वो रोटेट होगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट? सो जैसे ही वो रोटेट होती है तो हमें क्या मिलेगा? इस तरीके से कुछ होगा, VP प्लस HP दोनों वर्टिकल दिखेंगे। ये जो हमारी HP थी वो वहां से दिखेगी नहीं। तो क्या होगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका ड्राइंग जो है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट? उसका फ्रंट व्यू जो है वो हमें VP पे यहाँ पे दिखेगा, दिस इज फ्रंट व्यू एंड HP पे जो यहाँ पे दिख रहा था वो एग्जैक्टली वर्टिकल आ जाएगा, राइट? तो उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, लाइक दिस, राइट? मीन्स हमें एक ही प्लेन पे दोनों ड्राइंग दिखेंगे। सो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो हम इजीली व्यू देख पाएंगे। तो ये हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले रहा हूँ XY लाइन, देन यहाँ पे मेरा कौन सा व्यू होगा? फ्रंट व्यू, क्योंकि ये जो है वो VP है एंड ये जो डाउन साइड है वो HP है। तो HP में मुझे कौन सा व्यू दिखेगा? ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, राइट? सो फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू दिखेगा। ये होगी 2D की बात। अगर हम 3D में जा रहे हैं तो प्रोजेक्शन प्लेन भी होगा। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का जो 3D वर्जन होगा उसका जो साइड व्यू है वो उसका हम 90 डिग्री रोटेशन इस तरीके से लेके जाएंगे, राइट? मैंने आपको कल PPT में सेम चीज दिखाया था आपको। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो मुझे प्रोजेक्शन प्लेन पे दिखेगी। तो प्रोजेक्शन प्लेन VP के राइट साइड है, राइट? सो फॉर दिस इज लाइक दिस, प्रोजेक्शन जो प्लेन है वो यहाँ पे होगा, दिस इज FV, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज प्रोजेक्शन प्लेन PP एंड उसके ऊपर मुझे लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा, राइट? ऑब्जेक्ट का। अगर मुझे राइट हैंड साइड देखना है
तो राइट हैंड साइड व्यू मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड व्यू, RHS व्यू। अगर मैं बॉटम साइड देखना चाह रहा हूँ तो बॉटम साइड मुझे ऊपर दिखेगी, राइट। सो फ्रंट व्यू के ऊपर मेरा बॉटम व्यू होगा, एग्जैक्टली। सो अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा व्यूज मेरे, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट एंगल की अगर बात कर रहा हूँ देन आपका फ्रंट व्यू जो है वो हमेशा सेंटर में रहेगा। उसके राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू ऑब्जेक्ट का आएगा। एफवी के एग्जैक्ट ऊपर बॉटम व्यू होगा एंड एफवी के एग्जैक्ट नीचे टॉप व्यू होगा। ये जो है आपको याद रखना है, इस तरीके का ड्राइंग। अब इसमें टोटल कितने व्यूज है, 5 व्यूज है। हमें कितने ड्रॉ करने होते हैं, एग्जैक्टली 3 व्यूज। तो आपको ये बॉटम व्यू और राइट हैंड साइड व्यू या लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो इनों में से कोई 2 व्यू नहीं ड्रॉ करेंगे तो चलेगा। बॉटम व्यू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो फ्लैट सरफेस ही होगी, राइट। सो बाकी बचे 4, उसमें से कोई 3 आपको ड्रॉ करने हैं, बट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बाय डिफॉल्ट व्यू है, वो ड्रॉ करने ही करने हैं। उसके साथ या तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होगा या राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होगा। दिस इज द फर्स्ट एंगल मेथड फॉर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, राइट। अब बात करते हैं थर्ड में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका व्यूज कैसे आएगा, लाइक दिस। हमें उसके व्यूज दिखेंगे और ये जो हमारे व्यूज है वो ये प्लेन पे आएंगे, राइट। अब क्या होगा, जब एचपी प्लेन है वो 90 डिग्री रोटेट होगा, तब ये जो टॉप व्यू है ऑब्जेक्ट का वो ऊपर चला जाएगा और फ्रंट व्यू साइड में ही रहेगा, राइट। सो अगर उसकी बात हम करते हैं तो उसमें अगर मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, देन उसके जो व्यूज है उसमें भी फ्रंट व्यू जो है वो सेंटर में ही रहेगा। दिस इज द थर्ड एंगल। बट देखो फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू जाएगा, राइट। ये जो है हमारा फ्रंट व्यू है ऑब्जेक्ट का और ये जो है वो टॉप व्यू। एचपी रोटेट करेगा तो हमारा फ्रंट व्यू ऊपर चला जाएगा, एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, राइट। एंड फ्रंट व्यू नीचे रहेगा। तो फ्रंट व्यू के ऊपर हमारा टॉप व्यू दिखेगा एंड अगर टॉप व्यू ऊपर दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट बॉटम व्यू नीचे की साइड होगा, राइट। एंड अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल प्लेन। अगर यहाँ पे कहीं पे प्रोफाइल प्लेन हमारी है, अगर उसमें हम बात कर रहे हैं, देन ये जो हमारा राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट का होगा, फॉर एग्जांपल ये है हमारा ऑब्जेक्ट सीडी में, देन दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज राइट हैंड साइड व्यू, राइट। राइट हैंड साइड व्यू जो है वो हमारा राइट हैंड साइड में खुलेगा, राइट। सो दिस इज अवर राइट hand side view and this is left hand side view, right. So this is the difference between first angle projection method and third angle projection method. क्या difference है, टॉप व्यू बॉटम व्यू उल्टे फुलटे हो जाएंगे और राइट हैंड साइड व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू उल्टे फुलटे होंगे। आपको अगर याद रखना है तो इजीली आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सारे व्यूज जो है वो उल्टे होंगे। मींस टॉप व्यू बॉटम में होगा, बॉटम व्यू टॉप में होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में दिखेगा और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट में दिखेगा आपको। फ्रंट व्यू हमेशा सेंटर में ही रहेगा। अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, देन हमारा फ्रंट व्यू सेंटर में रहेगा, टॉप व्यू टॉप में, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में होगा, राइट हैंड साइड व्यू राइट में और बॉटम वाला बॉटम में होगा। तो सारे व्यू हमारे एग्जैक्ट पोजीशन में होंगे। ये जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। सो टोटल कितने डिफरेंस हो गए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का एक ये है। सेकंड डिफरेंस दैट द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, राइट। ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस, दिस इज अवर सेकंड डिफरेंस एंड द थर्ड डिफरेंस दैट इज
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं हम, देन यहाँ पे पहले व्यूअर, देन ऑब्जेक्ट एंड देन प्लेन। मीन्स ये अगर फर्स्ट एंगल है, देन व्यूअर का वी लिख रहा हूँ, व्यूअर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का ओ, एंड उसके बाद हमारा आएगा प्लेन का पी। व्यूअर फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन प्लेन, राइट। बट अगर थर्ड एंगल की बात कर रहा हूँ, देन यहाँ पे से व्यूअर, उसके बाद प्लेन एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये है थर्ड डिफरेंस, दैट व्यूअर देन प्लेन एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम चीज मैंने कल पीपीटी में दिखाई थी कि बीइंग ट्रांसपेरेंट प्लेन इन द थर्ड एंगल, राइट। प्लेन जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आप यहाँ से देखेंगे प्लेन के थ्रू ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। सो फर्स्ट डिफरेंस ये है, second difference this, and third difference is this, right? So you can write in your words that you can remember total 3 difference of this projection method, right? एक और फोर्थ डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो है सिंबल, राइट। अगर आपको बोलना ही है तो अभी लिख देते हैं, आप लिख ही रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल जो है उसका सिंबल इस तरीके से होगा, लाइक दिस। अब ये सिंबल किस तरीके से व्यू हो रहा है वो मैं आपको ड्राइंग के टाइम दिखाऊंगा, राइट। एंड द थर्ड एंगल अगर आप बात ड्रॉ कर रहे हो, देन लाइक दिस। ये जो सिंबल है वो आपको समझना है, इस तरीके से वो सिंबल आपको दिख रहा है, राइट। अब वो आपको मैं इजीली समझाऊंगा आपको, बट पहले सर ये देख लेते हैं। यस यस सर આપણે થર્ડ વ્યૂ માં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વ્યૂ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ વ્યૂ જરીક સમજાવી દયો ને। ओके, थर्ड एंगल पे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट। थर्ड में ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ये जो है हमारा फ्रंट व्यू है, राइट। दिस इज द टॉप व्यू। दो व्यू हो गए। इस साइड जो व्यू दिख रहा है आपको, वो कौन सा व्यू दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपको व्यू दिखेगा। मैं इसको शेड कर रहा हूँ। ये जो व्यू है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, राइट। वो कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे प्रोफाइल प्लेन पे, 3D में, राइट। अब प्रोफाइल प्लेन एग्जैक्टली पैरेलल होगा। अब उसको 90 डिग्री आप रोटेट करेंगे, किसके साइड? ये जो आपका एच वर्टिकल वीपी है उसके राइट साइड जाएगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट। मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो ओपन होके इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड व्यू है ओपन होके इस साइड आएगा। ये अगर आप एक काम कीजिए, 3D में एक पेपर से एक 3D ऑब्जेक्ट बनाइए इस तरीके से। अब उसको ओपन कीजिए। ये आपका फ्रंट व्यू है, FV। दिस इज द टॉप व्यू, TV। दिस इज साइड व्यू। अब ये जो साइड व्यू है कौन सा है? अगर यहाँ से फ्रंट व्यू में से हम देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। इस साइड ओपन होगा, राइट। एंड वो वाला उस साइड ओपन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड ही दिखेगा, एंड राइट हैंड साइड व्यू है वो राइट हैंड साइड ही दिखेगा। क्यों? मैं आपको एक काम करता हूँ, वापिस से मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें से आपको इजीली समझ में आएगा। ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू, राइट। ये जो मैंने थर्ड एंगल दिखाया मीन्स मैं जो ड्रॉ कर रहा था वो इस साइड से दिख रहा है। और फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू है, राइट। सो हमारा ये प्रोजेक्शन का साइड व्यू है वो किस तरफ खुलेगा? लेफ्ट हैंड साइड ही ओपन होगा। ये जो है सर स्क्रीन इज नॉट हॉरिजॉन्टल। विजिबल। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आई थिंक माय स्क्रीन इज વિઝિબલ विजिबल टू। છે यस It's visible, sir. यस please just wait for 1 or 2 seconds. It will be visible to all of you guys. Maybe network issue will be there from your side. I think from my side network is very good. So I'll do just share my screen again. So maybe if there any issue, then it will
સર ઇન્ટરનેટ આવે છે? Yes. Hello? Done, sir. Yes, sir. Yes. Now my screen is visible to you guys. Okay. So this is the third angle. ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है. ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ लाइन, राइट. यहाँ से नीचे की साइड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन है और ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये 3D में दिख रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है. सेम चीज मैंने यहाँ पे 2D में आपको ड्रॉ किया है. दिस इज द फ्रंट व्यू. ओपन होते ओपन टॉप व्यू जो है एचपी 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ऊपर आ जाएगा, राइट. वीपी के ऊपर एग्जैक्ट. तो यहाँ पे फ्रंट व्यू के ऊपर एग्जैक्ट टॉप व्यू है. अब जो ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसकी लेफ्ट हैंड साइड व्यू है. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जैसे ही ये प्रोजेक्शन प्लेन ओपन होगा इस साइड, ये लेफ्ट साइड प्रोजेक्शन प्लेन है, वो जैसे ही ओपन होता है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आएगी. अगर मैं यहाँ पे अगर कोई राइट हैंड साइड व्यू है इस जगह पे और यहाँ पे से प्लेन ओपन कर रहा हूँ, देन हमारी ऑब्जेक्ट की राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड आएगी, राइट. सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट एंगल में बात कर रहा हूँ, देन फर्स्ट एंगल में क्या होगा, हमारे जो प्रोजेक्शंस है वो फर्स्ट एंगल में इस तरीके से एचपी वीपी एंड प्रोजेक्शन प्लेन राइट हैंड साइड की तरफ से, राइट. सो फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो प्रोजेक्शन प्लेन में राइट हैंड साइड में दिखेगी. आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट. सो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस तरीके से हमें दिखेगा एंड दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं तो एचपी इस तरीके से दिखेगा, वीपी यहाँ पे है एंड प्रोजेक्शन प्लेन इस साइड है, राइट. So this way the projections are drawn, right. Now I'll just share the video again. I hope my screen is visible to all of you guys. Yes, sir. Yes. Now the big question that why we can't draw or place our object in the second and fourth quadrant, right? That is the big question. Now let's see. If I am placing my object, I'll just grab under the sketch pen so you can understand it. If I place my object in this quadrant 2, right? Now what will happen? Let's see. This is the front view because I am seeing from this side, right? This is my viewer. This is plane and this is object. So what will be my front view? Front view will be here on the VP, and then this is my top view like this. टॉप व्यू का प्रोजेक्शन जो उसकी इमेज है वो मुझे इस प्लेन पे एचपी पे ऐसे दिखेगी, राइट. ये मैं इमेज की बात कर रहा हूँ. अब क्या होगा, एचपी जो है वो रोटेट होगा 90 डिग्री. देन व्हाट विल बी हैपनिंग, अगर एचपी रोटेट होगा देन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये जो यहाँ पे होगा ड्रॉइंग वो इस तरह पे जाके यहाँ पे आके रुक जाएगा. सो यहाँ पे वीपी पे एचपी प्लस वीपी जब कोइंसाइड होके एक प्लेन बन जाएंगे तब मेरा फ्रंट व्यू भी यहाँ होगा और मेरा टॉप व्यू भी यहाँ पे होगा. टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों ये जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन है उसके ऊपर नीचे नहीं बट एक ही जगह पे एक दूसरे के सामने साथ में हो गए. और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ फ्रॉम दिस साइड आई एम व्यूइंग, देन मुझे ये दोनों ओवरलैप दिखेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरा फ्रंट व्यू कौन सा है और मेरा टॉप व्यू कौन सा है. That's why we cannot draw or we cannot place our object in the second quadrant, right? Similarly, in the fourth quadrant, let's see for the fourth quadrant. अगर fourth quadrant में हमारा object है तो same condition आएगी. For example, यहाँ पे हमारा top view दिखेगा, यहाँ पे front view, right? This way. But जब हमारा horizontal plane 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट के व्यूज है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएंगे.
यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। पर यहाँ से देख रहा हूँ, देन एक दूसरे के ऊपर मुझे दिखेंगे, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मेरा कौन सा फ्रंट व्यू है एंड कौन सा टॉप व्यू है, right? So because of this problem, we cannot place our object in the second and fourth quadrant. कभी भी आपको अगर वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछे, यस वी देयर आर टू मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, बट व्हाई we are not drawing or we are not defined the projection method like this second angle projection method and fourth angle projection method? Due to this, because if I am placing my object in the second or third quadrant, second or fourth quadrant, then my views, front view and top views, will be overlapping to each other when my HP is rotated 90 degree clockwise, right? जैसे ही हमारा HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो हमारे दोनों व्यूज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट place our object in the second quadrant or the fourth quadrant, right? Understood? Now, if any query until now, please tell. अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, then we can just move to the original drawings, right? ये जो है हमारा फंडामेंटल है। ये अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो समझ में नहीं आएगा। सबको फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के डिफरेंस पता चल गए? फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ डिफरेंस। फर्स्ट में क्या है? व्यूज उल्टे पुल्टे है थर्ड एंड फर्स्ट के। उनमें फर्स्ट में कैसे व्यूज दिखेंगे और थर्ड में कैसे व्यूज दिखेंगे आपको याद रहना चाहिए। सेकंड डिफरेंस एंड मेन डिफरेंस इज, in the first angle method, object will be placed in the first quadrant, and the third angle method, object will be placed in the third quadrant, right? Very basic difference it is. And the third difference, that is, in the first angle, first viewer, then object, and then plane, right? But in the third angle projection method, first viewer, then plane, and then object. ये जो है सॉरी वो चेंज हो जाएंगे, राइट? V is for viewer, P is for plane, and O is for object. That is third difference. And the fourth and last difference is the symbol of this both projection method. And I also give you the understanding of this symbol, but before that I'll just go through the one example so you can easily understand the difference in these symbols, right? So let's move forward for the example which we had done in the last lecture. So I have told you to capture a screenshot of that drawing, 3D drawing, right? So you have all captured the screenshot of that object, right? Now I'll just complete the drawing in the sketchbook so you can understand how to draw the sketches in the sketchbook for the orthographic projection methods, right? So first of all, for that drawing or for that object, I am drawing first angle projection method. First angle projection method जो है उसके अंदर में ड्राइंग कर रहा हूँ, राइट? Now, first of all, I'll just take the two sketch pens, right? First is orange and second is green. When I'm drawing any line with the orange sketch pen, then you have to understand that lines are drawn with the very light handed. बहुत ही लाइट लाइंस ड्रॉ करनी है जो मैं ऑरेंज स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो लाइंस में ग्रीन स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ वो सारी लाइंस आपको एग्जैक्ट
बहुत हार्ड नहीं जाना है, बट नॉर्मल ड्राइंग करना है। आपको पता चल रहा है, मैंने आपको लाइंस के टाइप सिखाए थे। कौन कौन से? फर्स्ट दो टाइप जो वेरी इजी थे, वो याद है किसी को? कौन कौन से टाइप थे लाइन के? Continuous thick and continuous thin. यस, कंटिन्यूअस थिक एंड कंटिन्यूअस थीन। सो आपको ये याद रखना है, जो लाइंस में ऑरेंज स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ वो थीन लाइंस है, और जो लाइंस में ग्रीन स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ वो थिक लाइंस है, राइट? सो आपको डिफरेंस तो पता ही है, थिक लाइन एंड थीन लाइन में कितना डिफरेंस रहेगा, राइट? सो वो डिफरेंस जो आपको मेंटेन करना है पेंसिल की हेल्प से, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द प्रॉब्लम, राइट? ये जो प्रॉब्लम है आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं बस यहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ 3D में, राइट? सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, जो ब्लू स्केच पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको डायरेक्ट ये जो है क्वेश्चन में ड्राइंग दिया होगा, राइट? इसलिए मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। मैं प्रॉब्लम क्वेश्चन और प्रॉब्लम ड्राइंग, इट इज लाइक दिस, राइट? थोड़ी ड्राइंग जैसी तैसी हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय फ्रंट व्यू। आपको पहले से ही डिसाइड करना है आपका फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है। दिस इज माय टॉप व्यू एंड दिस इज माय साइड व्यू, राइट? अगर साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मेरा फ्रंट व्यू है, देन दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ऑब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड है, राइट? ये अब आपको याद रखना है हमारी प्रोजेक्शन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द एक्सिस। मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइक दिस, राइट? अब आपको यहाँ पे डायमेंशन दिए नहीं है, राइट? तो अभी बिना डायमेंशन के हम ड्रॉ करें, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ड्रॉइंग वी विल गोइंग विद द डायमेंशन, राइट? फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज डायमेंशन हमने लिए नहीं, राइट? सो हमारी जैसे ही एक्सिस हो जाती है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आई होप सबको दिख रहा है ड्रॉइंग, व्हाट आई एम ड्रॉइंग, right? Now I'll just draw one another line at some distance. Maybe you can take 10 mm distance. This and like this. ये जो सारी लाइन है आपको लाइट हैंडेड ड्रॉ करनी है, बहुत ही लाइट लाइन ड्रॉ करनी है। वजन देके आपको ड्राइंग नहीं करना है। ये जो भी ऑरेंज स्केच पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अवर बेसिक क्वाड्रेंट, राइट? सो हमने ड्राइंग में सीखा था अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो कैसे होगा। यहाँ पे बेसिक में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज माय फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, ऐसा ही था ना कुछ। एंड दिस इज माय बॉटम व्यू। अब यहाँ पे आपको इन पांचों में से बॉटम व्यू ड्रॉ नहीं करना है कोई भी ड्राइंग में। अब बाकी बचे चार ऑब्जेक्ट। अब चार में हम ड्राइंग में देखेंगे हमारा फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। सो राइट हैंड साइड व्यू जो है वो हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, हमें ये तीन व्यू ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट? कौन से तीन व्यू है? दिस तीनों व्यू को मैं एक स्क्वायर में लेके आ रहा हूँ, लाइक दिस। दिस इज माय स्क्वायर। अब सेम स्क्वायर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट? सो अगर मैं देखूं ये स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, मींस यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। यहाँ पे आएगा फ्रंट व्यू एंड यहाँ पे टॉप व्यू आएगा।
एंड दिस क्वाड्रेंट विल बी एम्प्टी। अब जो एम्प्टी क्वाड्रेंट है वहां पे एक काम करना है आपको, सेंटर में से 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं पहले 45 डिग्री एंगल ले लेता हूँ। फोर्टी 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ऐसे खींच लेनी है जो एम्प्टी बचता है उसके ऊपर। अब मीन्स आपको पता चल गया फ्रंट व्यू कहाँ पे ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे ड्रॉ करना है, टॉप व्यू कहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट। अब हमें आगे बढ़ना है। सो अगर मैं फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूँ देन उसमें मुझे क्या क्या दिखेगा। अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट की ये जो सरफेस है वो मुझे दिखेगी, राइट, फुल सरफेस। ये जो है आपके ड्राइंग में आपने जो स्क्रीनशॉट निकाला उसमें आप देख सकते हैं ये सरफेस प्लस ये जो सरफेस है वो मुझे फ्रंट व्यू में से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिखेगी। आपको बस 3D इमेजिन करना है। ये जो दोनों सरफेसेस है वो मुझे इस साइड से दिखेगी, बाकी की ये साइड है वो मेरे पैरेलल होगी तो मुझे वो एज अ लाइन दिखेगी, पूरी सरफेस नहीं दिखेगी। सो वो जो सरफेसेस है वो मुझे ड्रॉ करनी है, राइट। सो ये जो सरफेस की ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो कॉर्नर है यहाँ से, राइट। सो यहाँ से जो हाइट होगी, अभी डायमेंशन नहीं है बट जो डायमेंशन होगा वो मुझे ड्रॉ करना है। मीन्स यहाँ से I'll draw some dimension like this। अभी ऑरेंज लाइन ही है तो आपको दिखेगी नहीं, राइट। बट ये जो लाइन है वो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है, राइट। तो वो मुझे ग्रीन लाइन से ड्रॉ करनी है, बट मैं अभी ग्रीन लाइन से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ऑरेंज लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। ये लाइन हो गई। अब बची ये लाइन नीचे, नीचे वाली जो जिस लेंथ की लाइन होगी वो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है लाइक दिस, राइट। उसके बाद अगर यहाँ तक है मीन्स ये जो डायमेंशन ये कॉर्नर है, मैं इस कॉर्नर पे पहुंच गया ये, तो उसका मुझे क्या करना है एग्जैक्टली यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुई है वर्टिकल, जहाँ पे कंप्लीट हुई है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचनी है। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मेरा फ्रंट व्यू है वो मेरा फ्रंट व्यू इस बॉक्स के अंदर दिखेगा, मुझे इतना ही होगा मेरा फ्रंट व्यू, उससे बाहर नहीं जाएगा। नाउ अब ये दो लाइंस हो गई आपकी, ये हो गई और ये हो गई। अब को क्या दिखेगा, यहाँ पे सर्टन हाइट पे एक थोड़ा ऊपर जा रहा है इस कॉर्नर से। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो कॉर्नर ड्रॉ हो रहा है उसकी डायमेंशन निकालूंगा और उस डायमेंशन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। अब ये जो है ये मेरा हो गया ड्राइंग। अब ये ड्रॉ करना है सर्टेन लेंथ पे वो जा रहा है, मीन्स समथिंग लाइक दिस यहाँ पे आ रहा है। तो वहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा लाइक दिस एंड ये जो है उसको मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अब मुझे ये वर्टिकल ड्रॉ करना है ये वाला। तो यहाँ से वर्टिकल यहाँ तक। अब ये जहाँ पे कंप्लीट हुआ वहां से वापस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, रेफरेंस लाइन, इसको हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ भी बोलते हैं। सारी ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो सारी रेफरेंस लाइन है। इसकी हेल्प से बहुत इजीली ड्राइंग और फास्ट हो जाता है। कैसे होते हैं हम देखेंगे। अब बारी है इस लाइन की, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। सो उसको ड्रॉ करता हूँ, उसकी जो लेंथ होगी उसकी लेंथ के हिसाब से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे वो कंप्लीट हो रही है, मीन्स वहां से हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस। अब क्या होगा, अब मेरा बाकी बचे ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अब वो दोनों यहाँ पे मुझे इजीली मिल गई है, दिस इज एंड दिस वन। ये जो ट्राइंगल वाला पूरा शेप है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है मेरा, राइट। अब दूसरा कौन सा बच रहा है, ये दिख रहा है। अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो एरिया है वो हमें नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखेगा कि इस कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है।
ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमें एक जैसे ही दिखेगी, तो ये लाइन है वो हमारी ये ही लाइन है। देन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये सारी लाइंस यहाँ पे पहले से ड्रॉ है, हमें ऐसा दिखेगा। देन बाकी कौन सी बचेगी, एक ये लाइन और ये दूसरी लाइन। सो वो है, वो यहाँ पे है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब ये जो आउटलाइंस है उसको मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, मीन्स वो हमें हमारी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस है। दिस इज द आउटलाइन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, कि हमें फ्रंट व्यू में से किस तरीके का ऑब्जेक्ट दिखेगा। सोच लीजिए, आपको फ्रंट व्यू में से अगर यहाँ से देख रहे हो ये दोनों साइड, तो हम इस तरीके से कुछ दिखेगी, राइट। अगर मैं शेड कर रहा हूँ शेड स्केच पेन से, तो ये जो शेडेड रीजन 1 है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, लाइक दिस। आपको ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है जो मैं अभी एंगल पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। रेड वाली लाइंस जो है वो आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो है फर्स्ट वो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और ये जो सेकंड है उसको मैं इस तरीके से अगर दिखाऊं, सेकंड रीजन, तो वो मेरा यहाँ पे है। दिस इज माय सेकंड रीजन, जो मुझे फ्रंट व्यू में से दिख रहा है। उसको हमने स्क्वायर से दिखाया है, तो मैं उसको स्क्वायर कर देता हूँ। सो एक दूसरे, दोनों रीजन एक दूसरे से अलग पड़ निकल जाएंगे, लाइक दिस। ये जो दो सरफेसेस हमें दिख रही है, सेकंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। अब ये जो है हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब आप कोई सा भी व्यू ले सकते हो। सबसे पहले ड्राइंग हमेशा याद रखना, फ्रंट व्यू से ही स्टार्ट करना है ड्राइंग, फ्रंट व्यू पहले कंप्लीट कीजिए। अब मैं लेता हूँ टॉप व्यू। तो हमें टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा वो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, राइट। तो आई विल जस्ट सी फ्रॉम द टॉप व्यू। देन टॉप व्यू में मुझे एक ये सरफेस दिखेगी, एल शेपेड सरफेस। दूसरी ये वाला स्टेयरकेस का जो स्टेयरकेस जैसा है वो दिखेगा, एंड ये दिखेगा। इतनी सरफेसेस मुझे टॉप व्यू में से दिखेगी, दिख रही है। अगर मैं ऊपर से ऑब्जेक्ट को देखूंगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, आप देखिए उसमें आपको ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा। तो आपको ये 3 सरफेसेस दिखेगी। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस 3 सरफेसेस हियर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर फ्रंट व्यू है, तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएंगे तो आपको ये जो टॉप व्यू है उसमें ये जो लाइन है वो ऊपर दिखेगी, और ये जो लाइन है वो नीचे की साइड दिखेंगी। मीन्स अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से कुछ दिखेगा, एल शेप ये होगा, और ये दोनों नीचे की साइड रीजन होगा। ये फर्स्ट वाला जो है, ये सेकंड वाला, ये एल शेप रीजन, और ये जो है वो तीसरा रीजन। मुझे इस तरीके से कुछ दिखेगा, राइट। अगर उसको मैं ऊपर से दिख रहा हूँ तो सेम जैसा कुछ जो हमें दिख रहा है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट। तो सेम चीज हम ड्रॉ करेंगे। ये जो लेंथ होगी तो सेम लेंथ यहाँ पे लेंगे हम। अगर ये लेंथ यहाँ पे तक है तो उसको हम उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस ये जो 45 डिग्री एंगल पे हमने लाइन बनाई वहां तक। मीन्स हमारा टॉप व्यू है, इसके अंदर ही हमें दिखेगा। अगर हम बात करें तो ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ तक वो ये है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट की ये लाइंस वो दोनों सेम है, मीन्स यही लाइन तक वो ऑब्जेक्ट दिखने वाला है। सम सर्टेन लेंथ तक वो नीचे आएगा, मीन्स यहाँ तक, एंड देन वो इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इस तरीके से हमें दिखेगा। कैसे
मैं आपको शेड करके देता हूँ रीजन को ग्रीन स्केच पेन, सॉरी पिंक स्केच पेन से। दिस इज अवर एल शेपेड रीजन। जो ये है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। बाकी के जो बचे दो वो ये है शेप। तो मुझे फाइनल शेप पहले पता चल गया है, तो उसको मैं ग्रीन आउटर लाइंस से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट आउटर लाइन जो हमें दिख रही है, हम वो ड्रॉ करेंगे। अच्छे से ग्रीन ड्रॉ नहीं हुई है। लाइक दिस हमें ऊपर के साइड से इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब उसमें ये जो फर्स्ट है वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये जो सेकंड है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। उसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। एंड ये जो हमारा थर्ड जो है सरफेस वो मुझे यहाँ पे दिखेगी। उसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक दूसरे से वो सारी अलग दिखेगी, लाइक दिस। ये हमारा ड्राइंग होगा, राइट, फ्रंट व्यू। अब बाकी बचा थर्ड व्यू जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। एक ये एल शेपेड है, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये चीजें ड्रॉ करने में बहुत इजी हो जाएगी हमें। फॉर एग्जांपल ये जो हमने एक्सटेंड की है ये लाइन, उसको एग्जैक्टली यहाँ से वर्टिकल खींच लेना है आपको इस तरीके से। तो आपको डायमेंशन लेने नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट डायमेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो एल शेप है वो ये है हमारा एल शेप। यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको ग्रीन से हाईलाइट ही कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत वो दिख जाएगा। दिस इज अवर एल शेपेड रीजन। जो ये है फर्स्ट वन फ्रॉम लेफ्ट साइड, वो हमें इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, राइट। बाकी के साइड में दो लाइंस दिख रही है, वो ये रहे स्टेयरकेस वाली। सो उसको भी मैं थिक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लीज रिमेम्बर ग्रीन लाइन इज द थिक लाइन एंड ऑरेंज वन इज द थीन लाइन, राइट। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। उसको भी मैं शेडेड कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पे उसको पिंक, ये जो फर्स्ट है वन, वो मेरा ड्राइंग यहाँ पे मुझे दिखेगा। ये जो ग्रीन सॉरी ब्लू पिंक एंड रेड लाइन से मैंने जो ये शेड किया है वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए ही है, क्योंकि आपको समझ में आए उसके लिए। अब ये जो हमारा सेकंड एंड थर्ड है वो यहाँ पे है, राइट। दिस इज अवर सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन। ये जो थर्ड सरफेस है वो हमें यहाँ पे ऐसे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो सेम कलर स्केच कलर कोऑर्डिनेटर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। यहाँ पे रेड था, यस रेड। दिस इज सेकंड एंड दिस इज वन एंड पिंक वन इधर है। दिस इज अवर वन नंबर, दिस इज टू एंड दिस वन इज द थ्री नंबर, राइट। तो ये जो है हमारा ऑर्थोग्राफिक्स कंप्लीट हुआ। बस अब जब यहाँ पे डायमेंशन दिए होंगे तब आपको डायमेंशन लाइन ड्रॉ करके आपको डायमेंशन देने हैं। फॉर एग्जांपल ये है तो आपको इस तरीके से डायमेंशन लाइन देनी है, जो डायमेंशन होगी वो, राइट, लाइक दिस
जो भी है, फॉर एग्जांपल ये 30 है तो आपको 30 लिख देना है। यहाँ से इसकी डायमेंशन देनी है, ये लेंथ, ये भी 30 लिख रहा हूँ अभी मैं। फिर आपको ये लेंथ भी दिखाना है कि भाई ये लेंथ कितना है। डायमेंशन देने के टाइम आपको याद रखना है कि डायमेंशनिंग के रूल क्या क्या थे। फॉर एग्जांपल ये 20 है तो हमने 20 लिख दिया। अब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उसका डायमेंशन मैं यहाँ दे रहा हूँ, लाइक दिस इज 20। अब इसको मैं एक्सटेंड करके इसका डायमेंशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज फॉर एग्जांपल 10, तो आपको 10 लिख देना है। अब कोई डायमेंशन बाकी है? यस, दिस इज, यहाँ पे 10 डायमेंशन दे रहा हूँ मैं। अभी मैं ऐसे ही रेफरेंस डायमेंशन दे रहा हूँ। जब डायमेंशन आपको ओरिजिनल हो तो उस डायमेंशन को फॉलो करना है, लाइक दिस। तो ये 10 है, मीन्स ये जो है वो भी 10 है, ये भी 10 है। ये यहाँ से समझ में आ रहा है रेफरेंस लाइन की हेल्प से, राइट। सो ये जो ड्राइंग है, उस सेम ड्राइंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रेजेंटेशन में दिखाया था। जो आपने स्क्रीनशॉट निकाला है उसी पेज में मैं सेम चीज आपको प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ। यस, ये जो प्रेजेंटेशन है उसके ड्राइंग मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। दिस इज आवर फ्रंट व्यू। मैंने जो 1 और 2 आपको शेडेड रीजन दिखाए थे। दिस इज आवर टॉप व्यू जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, एंड दिस इज आवर साइड व्यू। सेम चीज मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है अभी, राइट। सो आपको समझ में आ गया कि ये जो तीनों व्यू है और स्केच बुक में किस तरीके से आपको ड्रॉ करने, राइट। ये तीनों चीज हमने अभी अभी ड्रॉ की है, राइट। सो आई होप सबको समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस नो सर। डाउट। और सबको मेरी सर। स्क्रीन दिख रही है? यस यस। वो आपने आगे वाला ड्राइंग किया ना, हाँ हाँ, वो एक बार दिखाइए तो। यस दिखा रहा हूँ। Share that again. सर यस, इसके आगे किया ना हमने जो, इसके आगे, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट खाली लेना था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से वापस हम सेम चीज अलग अलग ड्राइंग की हम प्रैक्टिस करेंगे, सो हमें ये समझ में आएगा, राइट। अभी हमने क्या किया है, ये सर। स्क्रीनशॉट हो गया। यस सर ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देना। यस यस, वो कर दूंगा। अभी हमने क्या किया है, इस ड्राइंग को हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ड्रॉ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेम ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ड्रॉ करूंगा और हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं इस ड्राइंग में, राइट। सो उसकी हिसाब से आपको पता चलेगा अगर मैं फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज कर रहा हूँ तो मेरे ड्राइंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे, राइट। सो ओके सर। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। We will continue with the third angle projection method drawing for this problem in the next session. Thank you very much for joining today. थैंक यू सर।